Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I'm Dr. Shaheen Pasha and welcome you on the 8th lecture of the course Life and Learning. In the previous lecture, we looked at the 4 strands of IAG's learning model for self-management. That the goal of this learning model is to help people fully understand how and how well they control their lives, which were number 1 experience, number 2 interpretation, number 3 analysis, and at the end it was generalization. Now we are going to see that how well we can inculcate this model in our classrooms. It becomes more and more difficult to remain vulnerable, trusting, and open to life in this era of uncertainty, global upheaval, and disrupted family life. Fortunately, many of us have friends and family members we can count on, or a relationship with our friends we can turn to as a safe haven where we can let down our guard, relax, and be ourselves. But sometimes, even here, things can get rough. कि चाहे हमें जितना मर्जी ट्रस्ट हो, हम जो मर्जी कर लें, लेकिन हो सकता है कि इतने अच्छे रिलेशंस होते हुए भी हम लोग जो हैं किसी मुश्किल वक्त में आ जाएं. When every day stress is intrude into our protected space or an unexpected relationship problem disturbs our calm, we may begin to feel insecure and self-doubting. We may also begin to doubt our family's love, loyalty, and truthworthiness. Without realizing it, we may react to those doubts by pulling away from our loved ones in subtle way. For example, we trust people who are benevolent towards us, कि जो हमें बहुत प्यार करते हैं, who have integrity and whose actions correspond to our words. We trust someone we can count on to consistently do what is right. जिस तरह के हमारी इंक्लिनेशन होती है टूवर्ड्स दोज पीपल, टूवर्ड्स दोज इंडिविजुअल्स जो हमारे लिए बड़े मुखलिस होते हैं और who have uprightness for us, and जिनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो वो करते हैं, जो वो कहते हैं, उसको वो पूरा करते हैं. We believe somebody we can depend on to reliably do what is correct. और ये चीज़ हम लोगों को उनके और ज़्यादा जो है वो करीब कर देती है. और जब हम ये कहते हैं ट्रस्ट एंड फियर आर लिंक्ड in the way we fear other people. If we do not fear a person, then we will likely trust them far more. अगर आप मुझे रोज़ाना मानेंगे, then my experience tells me that I should fear you. If a child is beaten, they may develop a belief that adults and others are dangerous, are to be feared, and so are not to be trusted. कि अगर किसी के आप जज्बात को मजरू कर देते हैं और आपको एक टाइम पे आप उसको कहते हैं कि आई लव यू एंड आई केयर फॉर यू, और फिर उसके बाद आप उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं, एंड एवरी डे व्हेन यू डू दैट एंड दोज हु सीज दिस, उनका ट्रस्ट उससे उठ जाता है.
और यही ट्रस्ट जो है ये खौफ में बदल जाता है कि नेक्स्ट डे जब वो उस चीज़ को देखता है तो वो कहता है कि भाई इस तरह से हम क्या करें कि इस चीज़ जो है बच्चे के अंदर उसका खौफ और डर जो है वो ख़त्म हो जाए. दिस नीड्स ओनली हैपन्स अ फ्यू टाइम्स and maybe only once. If I cannot predict that you will never harm me, then I will not be able to fully trust you and will always be comfortable around you. Fear is a very, very expensive commodity. It is often used to gain short term compliance. But the price of fear is a loss of trust and maybe seeking of some other form of justice. And याग्स मॉडल के अंदर हम यही चीज़ देखते हैं कि हमने बच्चे को खौफ से निकाल के और हमने उसको सेफ इन्वायरमेंट की तरफ उसको लेके जाना है. उसको पढ़ाई के खौफ से, उसको एग्ज़ाम के खौफ से, उसको टीचर के खौफ से, उसको एनवायरनमेंट के खौफ से जो उसके इर्द गिर्द फैली हुई है, जो कि वो अपने इर्द गिर्द स्कूल के अंदर देखता है और कहता है कि भी मैंने काम नहीं किया तो मेरा क्या बनेगा, टीचर मुझे मारेगा. एंड दीज लिटल लिटल थिंग्स जो हैं उसको जो हैं और ज़्यादा उसकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ को कंफ्यूज्ड कर देती हैं. तो याग्स मॉडल का सबसे बड़ा मकसद यही है कि अभी हम उसको किस तरह जो है ट्रस्ट और फियर जो है उसका उसको एक इस तरह की हम जो है एनवायरनमेंट क्लासरूम की डेवलप करें कि वो उसके अंदर अपने आप को सेफ, कंफर्टेबल और हैप्पी महसूस करे. Trust is the fact of placing confidence in someone or something other than yourself. It's a social super glue. It's that glue which keeps you united. It's the binding for the deepest love and care, the strongest friendships and relations and the world's communities. Modern society is built on trust and in the absence of trust, what rules? Only fear rules. YAG model demands from teachers that when you are teaching, what is expected from you through this YAG model? That demonstrate patience, restraint from teaching too much, support for learning from mistakes, permission for the students to offer information, feedback, and suggestions to one another. Now we are going to talk about these 4 demands in detail. That teachers are being asked to demonstrate patience. What is patience? Patience is a virtue. Sabr ka phal meetha. The example of patience is like you have seen children displaying a great deal of patience. क्या है कि भी आपने बच्चों को अक्सर देखा होगा जब कोई पार्टी होती है या बर्थडे पार्टी होती है और बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप कहते हैं ओके अपनी अपनी मर्ज़ी का आप जो है एक बलून उठा लें और उसको हम फुला के देते जाते हैं. और चिल्ड्रन शो अ ग्रेट डील ऑफ पेशेंस एज दे वेट फॉर अ बलून. Or patience is the quality of waiting calmly without complaining. क्योंकि पता होता है कि
इस सब्र के बाद और इस पेशेंस के बाद जो चीज़ मुझे मिल रही है, इट्स वर्थ इट फॉर मी. An example of patience is also that someone standing peacefully in a very long line. The most important quality that a teacher should have is patience. A great teacher is very patient with their students and their parents to deal with the same question and problems over and over again. You never give up on your students and would try out new ways to help them succeed in schools. Like understanding your students. Teachers need to do more than just show patience with students. कि आपको बच्चों को समझना है कि उसका बिहेवियर जो है वो कैसा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये आज ये पढ़ना चाह रहा है कि नहीं पढ़ना चाह रहा है, और इसका कॉग्निटिव लेवल जो है वो कितना है. ये सारी चीज़ें उसको आपको समझनी होगी एज अ गुड टीचर. और उसके लिए फिर ये है कि individualize your students. This will help you understand each one and contribute to patience towards it. Okay, you should know how to include diversity. कि बच्चों के अंदर जो हमारी क्लास के अंदर इतने इलाकों के बच्चे आए हैं, इतनी तरह के बच्चे आए हैं, कभी गांव से भी लोग आते हैं, डिफरेंट कास्ट एंड कल्चर्स के होते हैं, डिफरेंट सूबों से आते हैं. तो यू गॉट टू बी वेरी पेशेंट, और इंडिविजुअली यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स टू स्टे and live happily and contributing towards his education and towards your class management. Be student centered and adjust according to each student's needs. That don't try to be very bossy or authoritarian. What happens is that a teacher should be very relaxing. Teacher should produce conducive environment कि बच्चे को फियर ना महसूस हो, बच्चे को आपकी अथॉरिटी ना फील हो, उसे पता हो कि वो आपकी ही इज़ बाउंड टू रिस्पेक्ट यू बिकॉज यू आर टीचर. लेकिन उसको ये भी पता हो कि अगर मेरी टीचर फर्म है लेकिन शी इज़ डिसिप्लिन और हम उससे सीख रहे हैं, दिस इज़ फॉर अवर बेटरमेंट. एंड टीचर्स गॉट टू बी वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड टू present the lecture, to take the classroom, to give them the activities, to help them sorting that task and accomplishing that task which teacher has been given to them to finish within that class time. And suppose that if any child is not able to reach to accomplish that task within given time, then even then there's no need to be harsh. Be very positive towards that. That might be at that time he didn't understand the instructions, might be the the other people of other group members, they are not cooperating with him to finish that task. So you got to be very positive towards demonstration that how you are acting in the class as a good teacher. Now the thing is that how you can stay patient. While there is no magic fix for these stressful encounters, these 10 tips can help
diffuse situations by showing students respect and teaching self-education skills. तो let's see one by one कि what are these. कि क्लास के अंदर जब भी कोई हालात हो जाए, how we are going to act as teacher. Stay calm. This sometimes can be difficult, but if you start shouting and losing your temper, this will only escalate the situation. ये उसको बढ़ाएगा ही. If needed, take a deep breath and count to 10 before reacting. Don't take things personally. Try to emphasize with the student and keep in mind that the misbehavior may be caused by factors beyond their control, such as stress, physical symptoms, or something happening at home that you are not aware of. और यही चीज़ है कि जब हम कहते हैं कि we are personality maker, we are character builders of our students, तो उसके लिए हमें डीपली जाके बच्चों को चीज़ों को पर्सनली देखना पड़ेगा कि कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है, वॉट स्ट्रेस इसे किस चीज़ का है, इसे फियर किस चीज़ का है, टू टेक हिम इन टू ट्रस्ट दैट एवरीथिंग इज़ सेफ विद यू, दैट इज़ गिव कॉन्फिडेंशियलिटी टू स्टूडेंट्स कि उसको आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर वो अपने घर की कोई बात आपके साथ शेयर करता है तो वो भी जो है उसको आप सीगाए राज में रखते हैं और उसको गॉसिप नहीं बनाते. And then create a safe setting. If it's not possible to leave the classroom, try to keep your interaction with the student semi-private, off to one side of the classroom and away from the other students. Don't allow other students to communicate with the student. जिस तरह बच्चों के अंदर आदत होती है कि अगर किसी ने किसी को छेड़ा है और उसने उसको एस्केलेट कर दिया उसके बिहेवियर को कि लड़ाई शुरू हो जाए, तो आपके अंदर इतनी करेज और इतनी स्किल होनी चाहिए कि आप मौका ही ना दें कि दूसरे बच्चे इस मामले के अंदर इंटरफेयर कर सकें. और उससे बड़ी चीज़ ये है कि क्रिएट सेफ डिस्टेंस. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप में और उस बच्चे में, क्योंकि उस टाइम पे वो बिहेवियरली बहुत ही ज़्यादा जो है अराउज हुआ होता है, जोश में होता है, तो कहीं वो अपने आप को भी सेल्फ हार्म ना दे दे और ना के दूसरे बच्चों को भी ना कोई नुकसान पहुंचा दे या आपके ऊपर ना झपट पड़े. तो इसके लिए सबसे बड़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि अपनी जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है आपके क्लासरूम का, उसको आप इतना अडेप्टेबल बनाएं कि अगर जो बच्चा ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, गिव हिम सीट्स क्लोज बाय द डोर, दैट इफ़ नीडेड गिव द स्टूडेंट प्लेंटी ऑफ पर्सनल स्पेस. के 2-4 फुट का फासला ज़रूर होना चाहिए. और जो ही उसका बिहेवियर जो है वो जोश की तरफ या किसी डिस्ट्रक्शन की तरफ जाने लगे, तो इट्स बेटर टू मेक हिम एस्केप फ्रॉम द क्लास. क्योंकि जो ही आप उसकी जो है सीटिंग जो है डोर के साथ रखेंगे, आपको उसको क्लास से बाहर निकालने में आसानी होगी और दूसरी क्लास को जो है उससे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा. एंड देन डेमोन्स्ट्रेट नॉन थ्रेटनिंग बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज कैन ग्रेटली अफेक्ट द टोन ऑफ योर एनकाउंटर विद एन अपसेट स्टूडेंट. कि अवॉइड क्रॉसिंग योर आर्म्स. अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं करना
अपने हैंड्स को झटकना नहीं है और उसको उंगलियां नहीं दिखानी बच्चे को, एंड अपने हाथों को अपने जो है दोनों साइडों से कमर पे नहीं रखना. नेवर प्लेस योर हैंड्स ऑन योर हिप्स. A relaxed stance communicates that you are calm and models the behavior you are wanting from the student. क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर कोई बच्चा बहुत ऊंची शाउट कर रहा है और आप उसके साथ जाके तो विस्पर करते हैं, तो वो क्या करता है, वो एकदम से उसका वॉल्यूम भी नीचे आ जाता है. एंड ऑलवेज यूज पॉजिटिव कम्युनिकेशन. Always be respectful in your communication and try opening the meeting with a positive statement. The student is most likely expecting negativity, and by being positive you may be able to disarm the student into letting down his or her negative guard. Also use simple and direct language. The student is more likely to be responsive if you use simple vocabulary and brief sentences. ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना आप इमेजिन कर लें. वो इसलिए कि आपकी वोकैबुलरी को और अल्फाज के चुनाव को बच्चे के सोच फहम के मुताबिक होना चाहिए और उसे वो चीज़ें समझ आनी चाहिए. और जो ही आप उसको एक अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं और उसको सुनते हैं अपनी पॉजिटिव कम्युनिकेशन से कि हाँ पहले आप बता दो, हाँ क्या हो गया है, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, ठीक है. इस तरह से ऑलवेज यूज़ पॉजिटिव कम्युनिकेशन. पेशेंट रहने के लिए 7th जो स्किल वो होनी चाहिए वो लिसनिंग है. कि लिसन, गेन द स्टूडेंट्स ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट बाय शोइंग हिम और हर दैट यू विल लिसन. डोंट इंटरप्ट while the student is talking. Don't interrupt the student and repeat what he or she says as a way of validating his or her feelings. This validation can have a powerful effect on getting the students to calm down. Use statements such as, "This feels like it is really important to you, and I want to make sure I understand what you are saying." और तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा. And give value to that students that you are listening carefully. Try to establish common ground. You may be able to do this by communicating that you understand why the student is upset. You are not excusing the behavior, but simply stating that most people would be upset if they experienced a similar infraction. If you cannot be find a point where you both can agree, you should simply state that you agree to disagree. ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि disagreeing in an agreeing way. And then try to get student to take responsibility for his or her behavior. Once you are conversing with the student in a productive way, encourage him or her to take responsibility for monitoring his or her behavior. जिस तरह से हम कहते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन कर लें फिर बात करें, और इस तरह से वो सुनता है. लुक इनटू हिज आई, उसकी आइज़ के अंदर देखें और उसे कहें कि यू नीड टू काम डाउन,
try using standard negotiation tactics such as proposing a couple of options, compromise when appropriate, and implement ways to measure outcomes. और जब ये बच्चा इन चीज़ों को समझ जाए कि यस you have made him able to take responsibility for his or her behavior, तो उसके बाद उसकी दोबारा से मीटिंग करें और ये देखें कि उसका प्रॉब्लम क्या था, ये सारी जो डिस्कम्फर्ट हुआ व्हाई डिड इट हैपन, और उसके लिए क्या कोई मेजर्स जो हैं फॉर फ्यूचर के अंदर मेजर्स लेने हैं टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम. तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं. एंड देन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू सेव फेस. आस्क द स्टूडेंट टू ऑफर सम आइडियाज़ on how to resolve the situation and how to provide a number of options to choose from. और ये उसके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर कोई बच्चे को उसी के उसके ऊपर डाल देना कि अच्छा जी ये तो चीज़ हो गई है, तो अब आप ये बताएं कि अब हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं. एंड देन देयर वुड यू विल गिव कुछ पॉइंट्स देंगे कि इनके अंदर से एक चूज़ कर लें कि वो कौन सी करता है कि फ्यूचर के अंदर इन गिवन चॉइसेस के अंदर से वो कौन सी चूज़ करता है जिसकी वजह से आइंदा से ऐसा जो है सिनेरियो पैदा नहीं होगा. हमने पिछली स्लाइड्स में ये देखा कि याग डिमांडेड फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्यू स्किल्स कि जो कि टीचर्स को करनी चाहिए अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर. एंड इसके साथ साथ जो है याग मॉडल स्टूडेंट से भी डिमांड करता है कि दे शुड कम टू क्लास फॉर स्टडी, फॉर रीडिंग. दे शुड बी प्रिपेयर themselves for class and participate in class activities, exercises and discussions. Take risks in a safe environment. Actively learn rather than passively take in information. And then follow up and take back to the job what they have learned in the classroom. ये जो 5 पॉइंट्स हैं वी आर गोइंग टू एलेबोरेट इन डिटेल, और हम ये देखेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स को भी अपना पार्ट जो है वो एजुकेशन हासिल करने में अदा करना चाहिए, जिसकी वजह से उनकी और उनके इदारे की जो है तरक्की का ये चीज़ ज़ामिन हो. First of all, we are going to see that what does mean prepare for class. Preparation is the act of preparing, getting ready, planning, training or studying with a goal in mind. And if you know pre means before, then you have a clue to the meaning of preparation. कि जिस तरह स्कूल जाने से पहले तैयार होना, कॉलेज जाने से पहले तैयार होना, और फिर ये पहले सोचना कि कल मैं यूनिवर्सिटी या स्कूल में क्या पहन के जाऊंगी, क्या पहन के जाऊंगा, मैं कैसे दिखूंगा, मैं किस किस से मिलूंगा, उस लिहाज से मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, और अगर मैं फ़ुटबॉल खेलने जा रहा हूँ या कहीं खेलने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए. हाउ आई नीड टू गेट रेडी. Dressing up before a date for going to any seminar or attending any group meeting or going for outing with your friends and attending school are all forms of preparation.
Being prepared can reduce fear, anxiety, and loses that accompany disaster. कि जब आप पहले से ही प्रिपेयर्ड होते हैं तो ये आपकी जो तजस्सुस है और आपका जो खौफ है कि पता नहीं क्या होगा, वहाँ पे लोगों ने कैसे कपड़े पहने होंगे, वहाँ की सेटिंग्स कैसी होंगी, तो जब आपको पहले से ही किसी चीज़ का पता होता है तो आप अपने आप को प्रिपेयर्ड उस इवेंट के मुताबिक पहले से ही कर लेते हैं. Communities, families and individuals should know what to do in the event of a fire and where to seek shelter. तो ये सारी चीज़ें जिस तरह से हमें पता होता है कि जो अगर आग लग जाए तो क्या करना है, अगर कोई चीज़ जल जाए तो उसको हमने कैसे देखना है, अगर सड़क के ऊपर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और आपके घुटने पे चोट लग जाती है तो इमीडिएटली आपको उसको अपने आप को फर्स्ट एड कैसे देनी है. तो व्हाट आर दीज थिंग्स? दीज लिटिल थिंग्स मेक यू वेल प्रिपेयर्ड फॉर द कमिंग इवेंट्स. क्योंकि अगर आप पहले से तैयार होते हैं इन चीज़ों के लिए, पहले से आपको अवेयरनेस होती है, तो इट मेक्स योर फियर को कम कर देता है, आपकी इस चीज़ को, खौफ को कम कर देता है कि कोई बात नहीं. आप दूसरों को भी फिर फैसिलिटेशन देते हैं कि अगर मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ और अगर क्लास के अंदर कोई ऐसी चीज़ मेरे से हो गई है तो मैं टीचर को फैसिलिटेशन और अपने ट्रस्ट में लूँगा कि कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ओके, वी विल फिक्स इट एज स्टूडेंट्स. दोज आउट ऑफ क्लास आवर्स and your class preparation are essential for getting a good grade. First, you should be prepared for classes in a practical sense. This means कि अगर आप अच्छे ग्रेड्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका क्लास में अटेंटिव होके बैठना, वेल प्रिपेयर्ड हो के अपने आप को, अपनी बुक्स को, अपनी नोटबुक्स को, अपनी पेंसिल्स को, अपने पेन्स को, सबको साथ रखना और वक्त आने पे ठीक टाइम पे नोट टेकिंग करना. और सबसे बड़ी बात ये कि जब सुबह जाने के लिए स्कूल आपने प्रिपेयर होना है तो आपके लिए एक नाइट पहले की स्लीप, गुड स्लीप जो है, इट्स वेरी वेरी जो है नेसेसरी, ताकि आप क्लास में ऊँघने के बजाय अटेंटिव होके लेक्चर लेंगे तो यू विल गेट बेटर, आप एब्जॉर्ब नॉलेज को ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं. एंड ईटिंग अ हेल्थी ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल इज़ yes thing which makes you more healthy. And everyone knows that a healthy body keeps healthy brain. तो ये चीज़ को कौन नहीं जानता. और इसके लिए जो है स्टूडेंट्स जो हैं उनको चाहिए कि वो इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर फॉर द क्लास, ताकि वो एक अपने आप को बेहतरीन स्टूडेंट जो है. Now we are going to talk about these 4 demands in detail. That teachers are being asked to demonstrate patience. What is patience? Patience is a virtue. सबर का फल मीठा. The example of patience is like you have seen children displaying a great deal of patience. क्या है कि भी आपने बच्चों को अक्सर देखा होगा जब कोई पार्टी होती है या बर्थडे पार्टी होती है और बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो आप कहते हैं ओके, अपनी अपनी मर्ज़ी का आप जो है एक बलून उठा लें और उसको हम फुला के देते जाते हैं. और चिल्ड्रन शो अ ग्रेट डील ऑफ पेशेंस एज दे वेट फॉर अ बलून. और पेशेंस इज द क्वालिटी ऑफ वेटिंग calmly without complaining.
क्योंकि पता होता है कि इस सब्र के बाद और इस पेशेंस के बाद जो चीज़ मुझे मिल रही है, इट्स वर्थ इट फॉर मी. An example of patience is also that someone standing peacefully in a very long line. The most important quality that a teacher should have is patience. A great teacher is very patient with their students and their parents to deal with the same question and problems over and over again. You never give up on your students and would try out new ways to help them succeed in schools. Like understanding your students, teachers need to do more than just show patience with students. कि आपको बच्चों को समझना है कि उसका बिहेवियर जो है वो कैसा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये आज ये पढ़ना चाह रहा है कि नहीं पढ़ना चाह रहा है, और इसका कॉग्निटिव लेवल जो है वो कितना है. ये सारी चीज़ें उसको आपको समझनी होगी एज अ गुड टीचर. और उसके लिए फिर ये है कि इंडिविजुअलाइज योर स्टूडेंट्स. दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड each one and contribute to patience towards it. Okay, you should know how to include diversity. कि बच्चों के अंदर जो हमारी क्लास के अंदर इतने इलाकों के बच्चे आए हैं, इतनी तरह के बच्चे आए हैं, कभी गांव से भी लोग आते हैं, डिफरेंट कास्ट एंड कल्चर्स के होते हैं, डिफरेंट सूबों से आते हैं. तो you got to be very patient, or individually you got to understand that what are their needs and requirements to stay and live happily and contributing towards his education and towards your class management. Be student centered and adjust according to each student's needs. That don't try to be very bossy or authoritarian. What happens is that a teacher should be very relaxing. Teacher should produce conducive environment कि बच्चे को फियर ना महसूस हो, बच्चे को आपकी अथॉरिटी ना फील हो, उसे पता हो कि वो आपकी ही इज़ बाउंड टू रिस्पेक्ट यू बिकॉज यू आर टीचर. लेकिन उसको ये भी पता हो कि अगर मेरी टीचर फर्म है लेकिन शी इज़ डिसिप्लिन और हम उससे सीख रहे हैं, दिस इज़ फॉर आवर बेटरमेंट. एंड टीचर्स गॉट टू बी वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड to present the lecture, to take the classroom, to give them the activities, to help them sorting that task and accomplishing that task which teacher has been given to them to finish within that class time. And suppose that if any child is not able to reach to accomplish that task within given time, then even then there's no need to be harsh. Be very positive towards that. That might be taking risk in a safe environment. It's very important कि बच्चे की पर्सनैलिटी को, उसकी शख्सियत को जो है इतना स्ट्रॉन्ग और मज़बूत बनाना कि स्टूडेंट जो है इस काबिल हो जाए कि वो रिस्क टेकर बन जाए, कि उसके माइंडसेट के अंदर ही हो कि मैंने ये नई नई चीज़ करनी है,
मैंने कोई अच्छी चीज़ करनी है, मैं इस चीज़ को मैं एक मकसद के साथ लेके आगे चलना चाहता हूँ। एंड टेकिंग अ रिस्क का मतलब क्या है कि to do something that may result in loss, failure, etc. etc. Every time you invest money, you are taking a risk. Taking risk in the classroom doesn't have to be as daunting as it seems. These are three good ways to get started that start with a growth mindset. Know that when if something you tried doesn't go perfectly, it doesn't mean you don't know that better, that you shouldn't try again. Know that even if something you try doesn't go perfectly, it doesn't mean you shouldn't try again. Use reflection to evaluate what went well and what didn't go so well, and what you'd like to improve for next time. This is very important thing कि स्टूडेंट को चाहिए कि स्टूडेंट जो है वो अपना पार्ट एजुकेशन में इस तरह से अदा करे कि वो एक्टिविटीज़, वो प्रोजेक्ट्स ले कि जिसके अंदर वो सोचे कि चले अगर मैं ये कामयाब ना भी हुआ तो लेकिन वो इस काबिल हो कि उसमें ये देखा जाए कि उसके अंदर कौन सी चीज़ें थी कि अगर ये कामयाब नहीं हुआ ये प्रोजेक्ट या ये टास्क तो व्हाई डिड इट हैपन, कि उसको रिफ्लेक्शन देना, उसको इवेल्युएट करना, उसकी हर चीज़ को असेस करना, उसको नोट डाउन करना और उसको देखना कि इसमें जाके कहाँ पे गलती हुई थी, एंड देन टेक स्मॉल स्टेप्स. डोंट ट्राई टू ओवरहॉल योर एंटायर क्लासरूम ओवरनाइट, जिसके अंदर यह है कि भी आप एक रातों रात आप कुछ भी नहीं बदल सकते. इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स लें लेकिन स्ट्रॉन्ग लें. सोचें कि मैंने जो टास्क करनी है इज दैट रिच, कि फाइंड सम रिच टास्क दैट गिव स्टूडेंट्स टू अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड कोलैबोरेशन, जिसकी हमने पहले भी अभी बात की. यू कैन फाइंड दीज टास्क्स, open up time within your friends to talk about मैथमेटिक्स हो गया या और कोई सब्जेक्ट हो गया जो कि आपको नहीं आता. एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछें, एक दूसरे से आप देखें कि ओके दिस इज़ द आइडिया, कि चलो जी आप ये बताएं कि जिस तरह सोचना किसी चीज़ को और करना कि बिफोर सेइंग समथिंग दैट द फियर माइट बी रॉन्ग, यू कैन incentivize them further by keeping a sticker chart and walking around to ask questions from your friends, that what everyone can contribute to finish that task in little steps. फिर ये कि encouragement, आप अपने आप को क्रिएटिव जो हैं बनाएं. स्टूडेंट्स शो करें दैट यस इनिशिएटिव लेने वाले, कि सेफ इन्वायरमेंट की प्रोविजन जो है ये स्टूडेंट्स को हौसला देती है कि वो कोई प्रोजेक्ट जो है वो ले सकें. दैट टू शो देम दैट इट्स ओके टू बी वल्नरेबल. यू माइट इवन से यू आर गोइंग टू ट्राई समथिंग न्यू टुडे. आई एम अ बिट नर्वस
and also excited too. So let's see how it goes. स्टूडेंट्स के दिल में हमेशा टीचर की जो है वो रिस्पेक्ट होती है. Who do that and learn that it's okay to take risks and not do everything perfectly. कि ये हौसला किसकी तरफ से आता है? टीचर की तरफ से आता है. और अगर टीचर की तरफ से ये हौसला आता है तो बच्चों के अंदर एनकरेजमेंट जो है स्टूडेंट्स में खुद ब खुद ही आ जाती है कि हमने किस तरह इस चीज़ को लेके चलना है. एक्टिवली लर्न रादर दैन पैसिवली टेक इन इंफॉर्मेशन. एक्टिव लर्निंग जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. चीज़ों में हिस्सा लें और पार्टिसिपेट करें. इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ में वैलिड मेथड्स यूज़ करें जिससे कि आप एब्जॉर्व इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज जो है वो कर सकें. क्योंकि स्टूडेंट्स जब तक एक्टिवली नहीं सीखेंगे उस वक्त तक वो अपने आप को आगे बढ़ा भी नहीं सकते हैं. स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है टू फॉलो अप एंड टेक बैक टू द जॉब कि जो कुछ उन्होंने सीखा है उसको वो किस तरह से जो है अपनी जॉब के लिए उन्होंने वो अप्लाई कर सकते हैं कहीं. इफ़ेक्टिव फॉलो अप स्किल्स आर नॉट इनेट. ये पैदाइशी नहीं होती, ये सीखनी पड़ती हैं. किसके थ्रू? ये कम्युनिकेशन के थ्रू सीखनी पड़ती हैं. ये आपको एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना के सीखनी पड़ती हैं. आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सीखनी पड़ती हैं कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने फ्रेंड्स को कर सकते हैं और अपने वो लोग जो हमारे साथ हैं, हमारे साथी हैं और हम उनके साथ मिल के हमने वक्त गुजारा हुआ होता है स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में, तो हम एज ए स्टूडेंट किस तरह से अपने आप को देख सकते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं और हमारी जो है जॉब मार्केट के अंदर हमारी क्या डिमांड होगी या हम जो है कौन कौन से सब्जेक्ट्स को हम लेके आगे चल सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट डज मीन प्रिपेयर फॉर क्लास. Preparation is the act of preparing, getting ready, planning, training or studying with a goal in mind. And if you know pre means before, then you have a clue to the meaning of preparation. कि जिस तरह स्कूल जाने से पहले तैयार होना, कॉलेज जाने से पहले तैयार होना और फिर ये पहले सोचना कि कल मैं यूनिवर्सिटी या स्कूल में क्या पहन के जाऊंगी, क्या पहन के जाऊंगा, मैं कैसे दिखूंगा, मैं किस किस से मिलूंगा, उस लिहाज से मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए. और अगर मैं फ़ुटबॉल खेलने जा रहा हूँ या कहीं खेलने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए. हाउ आई नीड टू गेट रेडी, ड्रेसिंग अप before a date for. So dear students, this was our discussion for today's lecture, and I'm very pleased that you have given time. Thank you for attending the lecture, for implementing the YAG model in classroom, and please do not hesitate to contact me on Google Classroom if you have any question. Thank you very much.